everyone. Welcome to the sessions of Hindu Marriage Act 1955. I hope you all remember that we are covering the syllabus of Hindu Marriage Act right now. I started with you Hindu law and this is one of its branch Hindu Marriage Act. So जो students Hindu law के regarding सारी sessions आपने cover नहीं कर पाए and those who want to understand basically what exactly is, so on the top you can see that link of playlists of Hindu law, go and watch it out. Now, recently I started this Hindu Marriage Act 1955 जिसके रिगार्डिंग मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रो में आपको समझाया था व्हाट इज मैरिज, वेदर मैरिज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ सेक्रामेंट, एंड देन आई डिस्कस्ड अबाउट सर्टेन रजिस्ट्रेशन एंड सेरेमनीज. सो दोज हु हैव नॉट वॉच्ड दोज प्रीवियस सेशंस, द वेरी लास्ट सेशंस वेयर I discussed about this registration. You can go on the top, you can see this link, watch it out. So for today students, I am going to discuss with you condition of valid marriage. This topic already I have started in the very last session, जिसमें मैंने आपके साथ section 5 का first part, second part और third part discuss किया था. That was regarding the monogamy. A person should have only one wife living at the time. Second is sanity, means the parties should be able to understand, they should be sane. Third is age restriction, that girl should be above the age of 18 years and a boy above 21 years. So these were the basic conclusions. Still, if you want to see on the top, you can see the link of this conditions of valid marriage part 1. Go and watch it out. आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट कंडीशन, जो कि सेक्शन 5 की हमारी फोर्थ पार्ट रहेगा. दैट वाज अबाउट बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री, कि व्हेन यू मैरी समवन, व्हेन यू मैरी द अदर पर्सन, ही शुड नॉट कम इन दोज प्रोहिबिटेड डिग्रीज. जो हमारा लॉ या जो हमारा एक्ट सर्टेन डिग्रीज को मानता नहीं है कि इसमें आपका वो पर्सन अगर फॉल करता है इस कैटेगरी में, देन यू कैन नॉट मैरी दैट पर्सन. And same thing you have to follow. If you marry that person, then that marriage could be void. That marriage is not valid one. So that thing you must keep in your mind. What are those prohibited degree? I'll discuss with you. Apart from that, these are the ways, dear students, contact us through the mail, or you can call us at any time. We are there for you to solve your doubts, your queries. Now, coming to this section 5 part 4, it discusses about beyond prohibited degree. Beyond prohibited degree means you have to follow this particular condition very must. It says that this clause prohibits the marriage between the parties who are within the prohibited degree of relationship with each other. कुछ हमारी फैमिलीज में ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनके साथ हमारी मैरिज पॉसिबल नहीं है, वो हमारी इस प्रोहिबिटेड डिग्री की कैटेगरी में आते हैं. सपोज इफ अ बॉय इज देयर एंड अ गर्ल इज देयर, और यू कैन से अ मैन एंड अ वुमेन, एंड दे फॉल इन दीज कैटेगरीज, देन दे कैन नॉट मैरी ईच अदर, बिकॉज वो अपने आप से या एक दूसरे से ऐसी रिलेशनशिप्स से बंधे हुए हैं, उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिसके बारे में मैरिज के हम सोच नहीं सकते. ये हमारा सेक्शन 5 हमें क्लियरली बता रहा है. और अगर हम सेक्शन 3 को देखें, जिसका जी पार्ट है, वो डिफाइन करता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. कौन सी है वो डिग्रीज? तो सेक्शन 3 डिफाइंस दोज डिग्रीज. लेट्स सी व्हाट आर दोज. द टू पर्सन्स आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. दो लोग उस डिग्री में कब कब आते हैं? इन रिलेशनशिप्स के थ्रू आते हैं. यू कैन सी दीज पॉइंट्स. सो लेट्स सी वन बाय वन. So the very first is if one is lineal ascendant of the other. Lineal ascendant का means है कि suppose this is the boy, A is the boy, और इसके जो family chart है, you can see here, this is the family chart, right? So यहाँ पर boy fall करता है, तो उसकी family branch में, family chart में, अगर वो girl suppose ऐसे उसकी ascendant है, ascendant means पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी, means if we see at the back, अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो वो अगर गर्ल उसकी किसी एसेंडेंट के रूप में आ रही है, मीन्स उसके कैटेगरी में वो अबव द फैमिली चार्ट है, देन दे कैन नॉट मैरी.
ओके अगर हम फैमिली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सपोज लाइक अ गर्ल कैन नॉट मैरी इज ग्रैंड पा बिकॉज वो कैटेगरी में उनसे ऊपर है. सो दैट इज द ट्रू थिंग. और ये हम एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉजिकली भी देखें, इट्स नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट पॉइंट इज if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other. ये पॉइंट भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हस्बैंड या वाइफ दूसरा पार्टनर मीन्स हम अगर बॉय को लेके चले तो गर्ल के बारे में देखना है और गर्ल को लेकर चले तो बॉय के बारे में देखना है कि वो एक दूसरे के लीनियल असेंडेंट्स के पार्टनर भी नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लाइक ए, यहाँ पर बॉय को ही लेकर चलते हैं और इनके जो फैमिली चार्ट में यहाँ पर सपोज ग्रैंड पेरेंट आते हैं तो ग्रैंड पेरेंट की वाइफ उनकी ग्रैंड माँ हुई, दादी. सो दैट पर्सन कैन नॉट, बॉय कैन नॉट मैरी हिज दादी. Okay, his the wife, because she is the wife of his lineal ascendant. सेम वे डिसेंडेंट के बारे में बोला गया है. जैसे अगर हम ग्रैंड पेरेंट को देखें और अगर उनकी वाइफ की डेथ हो गई है तो अगर उनकी फैमिली चार्ट में हम देखें, ही कैन नॉट मैरी द गर्ल और द वाइफ ऑफ समवन एल्स हु फॉल्स इन हिज कैटेगरी. डिसेंडेंट अगर हम आते हैं तो that's very true. Coming to the third thing is, if one was the wife of the brother or of the father's or mother's brother of the other. राइट सपोज कैसे, ये वैसे ये कंडीशन हम, मैं आपको इस कंडीशन के बारे में लेटर कुछ डिस्कस भी करूँगी. यहाँ पर इसको मैं स्टार पुट कर देती हूँ बट अभी के लिए ये समझिए कि आप अपने ब्रदर की वाइफ के साथ भी शादी नहीं कर सकते हो. वन वॉज द, अगर सपोज for any reasons your brother is no more, then that person cannot marry the wife of his brother. And same way आप father या mother के brothers की wife से भी शादी नहीं कर सकते. means that could be your aunt in relation, उनसे भी हम शादी नहीं कर सकते, वो हमारी prohibited डिग्री में फॉल करती हैं. फोर्थ कैटेगरी इज इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर. ये कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जो कभी भी मैरिज के लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकती. ब्रदर एंड सिस्टर, हिंदू लोग हमारा कहता है भाई और बहन के रिश्ता ऐसा है, उसमें शादी पॉसिबल नहीं है. अंकल एंड नीस, yes, that's also, you can, uncle cannot marry his niece and same way niece cannot marry her uncle. Aunt and nephew, opposite of that. और चिल्ड्रन और ब्रदर एंड सिस्टर मीन्स आपके ब्रदर या सिस्टर्स के बच्चे और ऑफ टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स, यू कैन नॉट मैरी दीज थिंग्स. लाइक टू सिस्टर्स हैं, उनके बच्चों की भी आपस में शादी नहीं हो सकती. आप खुद से रिलेशन देखिए, अगर हिंदू फैमिली में आप देखते हैं तो दो मासियों के बच्चों की शादी नहीं हो सकती हैं. सेम वे टू ब्रदर्स, अंकल्स, आप अपने अंकल के बच्चों से शादी नहीं कर सकते. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. मेक योर नोट्स एंड राइट ऑल द थिंग्स. ट्राई टू रिलेट विद योर फैमिली ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर आ जाए और आप समझ जाओ yes it's true. Now looking at the explanation of this section 5 fourth part, listen it carefully. For the purpose of the clause relationship includes, कैसी कैसी relationships की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारे relationships आपको समझनी है. Relationship by half or uterine blood as well as by full blood. Okay, half or uterine blood means कि you have common mother but different father, और you have common father but different mother. तो उसमें आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना है. दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड. इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप्स है, अगर आप इलेजिटिमेट चाइल्ड है अपने फादर या मदर के तो भी आप उसमें इंक्लूड होते हो. लेजिटिमेट इलेजिटिमेट में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा. रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन, इफ़ यू आर एडॉप्टेड चाइल्ड या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके एडॉप्टेड पेरेंट्स रहें, आप मतलब adopted child अपने पेरेंट्स के, तब भी आप इंक्लूडेड हो. एंड ऑल टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इन दोस क्लॉजेस. सो ये सारी रिलेशनशिप भी इंक्लूड. आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं तो इनका दत्तक पुत्र हूँ या पुत्री हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. देन नेक्स्ट थिंग, व्हाट, व्हाई आई हैव पुट देयर अ स्टार, ये भी आपको समझना है. ठीक है, सेक्शन 18 कहता है, ये ध्यान से सुनना है, मैंने उस कैटेगरी में आपको एक बार और दिखा देती हूँ. इस कैटेगरी मैंने स्टार पुट किया था जिसमें था वन वॉज द वाइफ और ब्रदर और द फादर और मदर ब्रदर ऑफ द अदर. मीन्स आप अपने भाई की वाइफ से या वाइफ अपने सेम थिंग शादी नहीं कर सकते. सो सेक्शन 18 क्या कहता है,
Hindu Marriage Act provides simple punishment up to 1 month or with fine up to 1000 for contravention of this condition. मीन जो भी ये मैंने कंडीशंस ऊपर आपको बताई हैं सारी की सारी, अगर आप इनके बियॉन्ड जाते हो तो आपको पनिशमेंट है 1 मंथ की एंड फाइन आपको 1000 रुपीज़ का लगेगा. बट येस, this is the thing where you have to pay attention. But if the custom or usage, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ के कस्टम हमने पढ़ा था. All you know, if don't know, on the top you see the link where I told about the customs. सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में हमने पढ़े थे. तो ये हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज रहे हैं, कस्टम जो हमारी रीति रिवाज चली आ रही हैं. तो अगर हमारे फैमिली की रीति रिवाज ऐसी है कि उसमें ये काइंड ऑफ शादी या जैसी वो मैरिज है उसको एक्सेप्टेंस दे रही है सोसाइटी, देन पार्टीज कैन गो फॉर दैट. वो मैरिज क्या होगी, विद इन द डिग्री प्रोहिबिटेड है, स्टिल वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी, बाइंडिंग मानी जाएगी, अगर आपके कस्टम और यूसेज कहते हैं. कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा है जहाँ पर इफ़ पर्सन लाइक समबडीज ब्रदर इज नो मोर, तो उसकी वाइफ की शादी उसके नेक्स्ट ब्रदर से कर दी जाती है. ये कहीं कहीं पर पॉसिबल हो रहा है. सो ये कस्टम एक्सेप्टेंस मिलती है. आई जस्ट गिव वन एग्जाम्पल ऑफ दैट कस्टम. यू कैन गो फॉर अदर कस्टम्स और आप अपने कमेंट्स में मुझे शेयर कर सकते हो कि ऐसा कस्टम है. राइट. सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स, आई वाइंड अप दिस सेशन. टिल देन कीप वॉचिंग, stay tuned. If you have any queries, you can send us your queries through that mail and number. Have a nice day. Thank you.